Okay, so anyone willing to volunteer for the first short case? I think people haven't joined yet. Dr. Motasim, are you here? Yes, ma'am. Okay. Okay, so are you ready? Yes. Okay. So this is your command. Examine the head of the patient. Yes, ma'am. First of all, I will introduce myself and I will take consent from the patient and I will make sure the baby is in the appropriate position. I will do the gross inspection of the scalp and skull. On gross inspection, there is obvious craniofacial disproportion with visible pulsations, I think, and prominent veins. And then I would do the palpation of the sutures. I will palpate the anterior and posterior fontanelle and I will check for sutural diastasis, and I will check the OFC twice, one measurement and the second measurement. Then I will do the transillumination and anterior posterior fontanelle, and lastly I will check for the bruit. I will check for the bruit at the retromastoid region and at the mid part of the scalp. Then I will like ask for extension of my examination, and I would go and check for the lower spine for any associated carry to malformations like myelomeningocele. I would check for the other developmental anomalies in the foot for club feet, in the hand for syntactily, and for the chest for any dextrocardia. And I will check the hernial orifices for any associated abnormality as well. Okay, Dr. Motasim. I forgot to mention on inspection, there seems to be a obvious sunsetting sign as well. I would also check for the cleft lip and cleft palate. Thank you. Okay. So that is it, right? Yes. Okay. Okay, so Dr. Motasim, these are your findings. Yes. Relevant question was age is 1 year. Okay. Okay. So on the basis of these findings, now what is your most likely diagnosis? Madam, the patient has obvious craniofacial, it's hydrocephalus. The patient is hydrocephalus. Okay. What could be the most likely cause? It can be obstructive, it can be communicating, it can be congenital, developmental. Okay. So how will you investigate? I would get the CT scan brain plane of this patient. Okay. So this is your scan. And Please read the scan. ma'am, this is CT brain plane on the patient showing axial cuts. And on the axial cuts, I can appreciate obvious ventriculomegaly with the dilatation of lateral horns of ventricle and occipital horns as well. There's ballooning of the third ventricle. I cannot appreciate the fourth ventricle in this scan. And the quadrigen, no, no. Yes, I cannot appreciate any fourth ventricle in this scan. So on the There are basis, dilatation of temporal horns as well. okay. So on the basis of the scan, now what's your differential like? What's the most likely cause of hydro? Madam, it seems to be an obstructive variety, aqueductal stenosis. Okay, okay. Any other investigation you'd like to carry out? I would also like to get MRI brain of this patient, Anything else? and I would get CSF-RE if I'm planning any CSF diversionary procedure. Okay, okay. So how will you counsel the mother? I would counsel the mother that the baby has increased fluid in her brain, which is causing pressure and expansion of the skull, and she needs surgery to alleviate the pressure and her symptoms. And the main aspect of surgery would be the rest of progression, and we can monitor the baby for psychosocial development later on. And I can give her the option of VP shunt insertion, and I can also give her the option of less invasive endoscopic third ventriculostomy.
What are pros and cons of each of them? Uh, for VP shunt insertion is a comparatively more successful procedure in this kind. Both are pros and cons of both. Yes, both of them. Ma'am, ETV is less invasive and it has lesser complications compared to the VP shunt, like bleeding, infections, malfunctions, and it can be done in one setting. VP shunt needs is prone to hardware failure and it is more prone to infections, and the child is shunt dependent for whole life. So, what would be the better management option in this case? Uh, a better management option in this case would be endoscopy. I would like to calculate the ATV score first, Okay. and What's the ETV then I score of would. this patient? Madam, does she have any MMC? No. No, no, she does not. Acute stenosis. Okay, sorry. Age is 1 year. 0, 10, 20. That is 20, 20 score, 20, 30. She has 60 scores, so she's a candidate for VP shunt. Oh, sorry, ETV. Okay. How much percentage of ETV success? Ma'am, for aqueductal stenosis, I think it's 30, and there's no history of previous shunt insertion, and it's 10. I cannot accurately recall the age, but I think it is 20. So combined, I think it's 60. So it's 60 There is good score? 60%. 60, I think there is minimal chance of failure at first 6 months, but after 6 months, there's more chance of success. Okay. Okay. What is Evans ratio? Evans ratio is biparietal diameter to frontal horn ratio. And if it's greater than 0.3, there's Gauss hydrocephalus. If it's less than 0.3, it's normal. Okay. 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 So what are the for example, you did ETB in this patient and the hydro has not resolved. ETB has failed. Now, what are your management options? If I can check for, we can put a, if the patient is not in acute deterioration, we can put a VP shunt. And if the patient is acute deterioration symptomatic, we can do an EVD to relieve the pressure. And we can do a refenestration as well. If there is hydro, we can increase the size of fenestration. Okay. Okay. So, what are the steps of shunt placement? Well, there are uh, two aspects to this. There is cranial and there's abdominal. First, we prep the patient in OT, and we choose appropriate position with the head in slight extension and neck is immobile, and the abdominal scalp are both scrubbed and prepped. We mark the skull for incision at the Keen's point, and we make a curvilinear incision. We do the burr hole. We pass a shunt towards the What are the landmarks of lateral King's horn. Point? Maybe 2 centimeter above and behind the pinna. Oh, sorry. Yes, pinna. 2 to Two. 2.5 centimeter. 2 to 2.5 centimeter. Okay. 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 Yes. Then you give a curvilinear incision. Then We do the muscle dissection. We preserve the pericranium, and we do a burr hole, and we pass the ventricular catheter towards the lateral ventricle. And we, in this case, I would put 6 to 7 centimeter of the length. you initially And pass the after, ventricular catheter, or you do something else before. I cauterize the dura and I do a durotomy and I make sure there's no bleeding. What Sorry. about the passer and the peritoneal end? In Yes, madam. We will make incision of the abdomen and we will we'll do the dissection and we'll dissect the rectus sheath and the peritoneum and we'll put up a shunt passer from the chest wall and we'll cross it and we'll connect it with the scalp. नो आई एम आस्किंग कि पहले आप वेंट्रिकुलर एंड डाल के फिर ये सारे काम करेंगे. Madam, we can हमारे सेटअप में यही करते थे. एग्जैक्टली फिर मुझे दोबारा बताएं. इंसिशन दिया कर्विलिनर, फिर उसके बाद आपने वर्क किया, Yes. उसके बाद आपने क्या किया?
Bulk here, and I'll prep my abdomen, and I will pass the shunt parcel, and then I'll pass the ventricular catheter, and will connect them both. I'm not very sure about it. Sorry. ओके सो मतलब मैं आई एम आस्किंग के वेंट्रिकुलर कैथेटर आप पासर के बाद डालेंगे या उससे पहले? अ, उसके बाद उसके बाद, ठीक है। अच्छा, कितना आप डेप्थ पे जाते हो? 6 to 7 centimeter in this case. एंड द डायरेक्शन ऑफ द कैथेटर इज? uh, towards the medial canthus of the ipsilateral eye. ओके, इप्सिलेटरल और कॉन्ट्रालेटरल? Sorry, contralateral eye. Contralateral eye. ओके। एंड what kind of what pressure shunt you usually use? Usually we use medium pressure shunt What are the values in for our medium setups. pressure shunt? कितना सेंटीमीटर Medium होता है? pressure, I think it's 20 to 30. What's the normal ICP? Sorry, I cannot. A normal ICP is less than 15, but I cannot recall the shunt pressures right now. Okay, okay. So, okay, Dr. Motasim, we are running out of time, so you were very good. Sorry. ठीक है। ऑन स्पेशली जो आपने पेशेंट की एग्जामिनेशन की, यू वर वेरी फाइन। हेड की एग्जामिनेशन ऐसे ही करते हैं। यू इंटरप्रेटेड द रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग्स वेरी वेल, यू टोल्ड ऑल द सर्जिकल ऑप्शंस वेरी वेल। ठीक है, यू काउंसल द मदर ऑल्सो। बट स्टेप्स पे आके जो है, शंट इज अ वेरी बेसिक प्रोसीजर, और इसमें आप Yes, ma'am. जो इसमें थोड़ा सा जो है वो आप होते हो कंफ्यूज, तो इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है, नॉट Yes. एक्सेप्टेबल। ठीक है, शंट के स्टेप्स आपको टिप्स पे होने चाहिए। इट इज अ वेरी बेसिक प्रोसीजर। ईयर 2 ईयर 3 के रेजिडेंट्स हमारे पास कर रहे होते हैं, तो इस पे कोई माफी नहीं है। ठीक है, बाकी नॉलेज वाइज यू आर वेरी गुड। ठीक है, बस थोड़ा सा स्टेप्स आप जितना रिवाइज करेंगे, तो उतना जो है वो आपको रिफ्लेक्सेस उसके जो है वो बन जाएंगे। अदरवाइज यू आर वेरी गुड। ठीक, बिल्कुल यही चीजें पूछते हैं। मैंने भी सारी यही चीजें पूछी कि समराइज। ठीक है, मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, कौन से इन्वेस्टिगेशंस करेंगे, क्या कॉजेज होते हैं, मदर को क्या काउंसिल करेंगे, मैनेजमेंट ऑप्शंस क्या होते हैं ईटीवी के, और वी पेशेंट के क्या प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, स्टेप्स क्या होते हैं, पोस्ट ऑप कॉम्प्लिकेशंस। जब आप हेड की एग्जामिनेशन करते हो, तो उसमें आप वही चीजें, इंस्पेक्शन, ठीक है, फ्रॉम बैक, साइड्स एंड फ्रंट, शेप ऑफ द हेड देखते हो, क्योंकि क्रेनियोसिनोस्टोसिस का कोई पेशेंट होता है, उसमें भी आपको हेड एग्जामिनेशन का ही मिलता है, कमांड मिलता है। ठीक है, फॉन्टेनिल्स और ये सारी चीजें आप लोगों को पता है। यू हैव रेड अ लॉट ऑफ टाइम्स, यू हैव डन अ लॉट ऑफ टाइम्स। ठीक है, पेल्पेशन पे ओएफसी, बिल्कुल आप दो मेजरमेंट्स लोगे। ठीक है, फॉन्टेनिल, सुचरल डायस्टेसिस, ठीक है, आप पेल्पेट करके देखते हो सुचरल डायस्टेसिस का, और इवन परकशन पे स्लाइटली आप क्रैक पोर्ट साइन करोगे। ठीक है, जोर से जो है वो आप उसको नहीं करोगे, बहुत जो है वो जेंटल आपको रहना होता है बच्चे के साथ। ठीक है, ऑस्कल्टेट, ऑस्कल्टेट कहाँ करते हैं? यहाँ एक तो एयर के पीछे भी करते हैं, एयर के अबव भी करते हैं। ठीक है, टू लिसन फॉर एनी ब्रूई ऑफ वेन ऑफ गैलेन मेलफॉर्मेशन। रेलिवेंट एग्जाम आप जरूर करते हो, हेड टू टो एग्जामिनेशन। आप ऐसे हेड टू टो याद रखोगे तो आप चीजें कभी भी नहीं भूलेंगे। ठीक है, आपने हेड का एग्जामिनेशन किया, अब आप हेड टू टो आ जाओ। ठीक है, आईज पे सनसेट आईज है, कोई प्रोप्टोसिस है। ठीक है, फेस पे ईएनटी एग्जामिनेशन, क्लेफ लिप, क्लेफ पैलेट आपने देख लिया, फिर आप हार्ट पे आ जाओ, कोई भी मर्मर आपको सुनाई देता है, एब्डोमेन पे अम्बिलिकल हर्निया आपको देखना होता है। ठीक है, कोई जेनिटल जो है वो एग्जामिनेशन में, कोई बेबी मेल है तो उसमें आपको हाइड्रोसील देखना होता है। ठीक, लोअर लिम में आप कोई भी डिफॉर्मिटीज हैं। ठीक है, लोअर लिम में पावर, जब आप बच्चों में पावर चेक करते हो तो आप सिर्फ स्लाइटली टच करते हो। ठीक है, पेन नहीं देते हो बच्चों को, टच करते हो, या आप लोअर लिम्ब को ऐसे उठा के ऐसे छोड़ते हो, तो आपको पता चल जाता है कि लोअर लिम्ब में पावर है या नहीं। ठीक है, तो आप इस तरह से कर सकते हो। दूसरा, फिर आप बैक देखते हो पेशेंट की, कोई एसोसिएटेड कोई उसमें डिफेक्ट तो नहीं है, एमएमसी, स्कोलियोसिस, ऐसा कुछ तो नहीं है। अपर लिम्ब की एग्जामिनेशन भी आप यही करते हो, सिंडक्टाइली तो नहीं है, कोई अपर लिम्ब में पावर का मसला तो नहीं है। तो ये सारी चीजें आप हेड टू टो एग्जामिनेशन करते हो। दूसरा ये कि कभी कभी शंट हुआ हुआ होता है ऑलरेडी, तो आप हेड का एग्जामिनेशन जब कर रहे होते हो, तो शंट को भी जरूर देख लिया करो।
रेलिवेंट क्वेश्चंस में एज आपका पूछना बहुत जरूरी है। ठीक है, कोई हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा अगर आप पूछना चाहो तो पूछ सकते हो। ठीक है, बाय बर्थ अगर आप पूछोगे तो वो एक कॉज डेवलप हो जाता है, कंजेनाइटल हाइड्रो है। अगर बाय बर्थ उसको नहीं है, बाद में हुआ है, तो उसके बाद उसका आपका हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा या फीवर जैसे मेनिंजाइटिस या कोई इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज के बाद हुआ है हाइड्रो, तो वो आप पढ़ सकते हो। ठीक है, ओएफसी आपको टिप्स पे याद हो नॉर्मल कितनी होती है, और नॉर्मल के बाद जो है रेफरेंस के हिसाब से, एज रेफरेंस के हिसाब से नॉर्मल ओएफसी कितना होता है, तो उसी हिसाब से आप बता सकोगे। तो ये चार्ट आपको बाय हार्ट याद होना चाहिए, क्योंकि इंक्रीज ओएफसी आप तभी बता सकते हो जब आप एज के हिसाब से नॉर्मल ओएफसी जानते होंगे। ठीक है, सो जस्ट रिमेंबर इट। नॉर्मली एट बर्थ इट इज 36 सेंटीमीटर। ठीक है, मैंने इस तरह याद रखा है, सिंधियों में जो बच्चे पैदा होते हैं तो उनकी छठी होती है। ठीक है, तो छठी इन सिंधी इज 36। सो 36 सेंटीमीटर बच्चों का ओएफसी एट बर्थ होता है। उसके बाद इट इज इजी टू रिमेंबर, बट 2 सेंटीमीटर पर मंथ फॉर फर्स्ट 3 मंथ्स, देन इट्स 1 सेंटीमीटर पर मंथ फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स, 0.5 सेंटीमीटर पर मंथ फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स, एंड देन इस तरह से 1 ईयर और 2 ईयर की एज में इतना होता है। ठीक है, सो ये जरूर याद रखना है, क्योंकि इसी को आप कंपेयर करके फिर आप आगे बता सकते हो। इवेंट्स रेशियो आपको याद होना चाहिए। डॉक्टर मोहतसिम, यू आर वेरी गुड, आपने बिल्कुल सही बताया। क्या इसकी कट ऑफ होती है, क्या फॉर्मूला होता है, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। सर्जिकल मैनेजमेंट में ईटीवी सक्सेस स्कोर पे कोई माफी नहीं है। ठीक है, ईटीवी सक्सेस स्कोर आपको टिप्स पे याद होना चाहिए। ठीक, और उसी के बेसिस पे आप बताते हो कि सक्सेसफुल होगा या नहीं। तो इज मोर देन 70% जब होता है तो दैट इज कंसिडर्ड सक्सेसफुल। ठीक है, कीन्स और कॉकर्स पॉइंट आपको याद होने चाहिए। कीन्स पॉइंट बेसिकली इज 2.5 to 3 सेंटीमीटर, नॉट 2 to 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 to 3 सेंटीमीटर अबव एंड बिहाइंड द पिंडा। ठीक है, तो दिस इज प्रिटी मच इट। शंट का आपको पता होना चाहिए, लो मीडियम और हाई प्रेशर का ये होता है कि लो प्रेशर खुलता है वेल्व जब जीरो जब 5 सेंटीमीटर ऑफ वाटर से कम होता है आईसीपी, और मीडियम होता है 6 to 10, एंड हाई होता है 11 to 15, कुछ इस तरह की वैल्यूज होती है सेंटीमीटर ऑफ वाटर। तो जो हम यूज करते हैं यूजुअली हम मीडियम प्रेशर करते हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जो स्टेप्स ऑफ सर्जरी हैं, स्टेप्स ऑफ सर्जरी आपको टिप्स पे होनी चाहिए। शंट जो है उसकी स्टेप्स ऑफ सर्जरी पे आप बिल्कुल भी अटके नहीं। तो दिस इज प्रिटी मच इट। यहाँ तक कोई सवाल इस शॉर्ट केस में? यू पीपल कैन आस्क, or you can move on to the second short case, because we have very limited time. Okay, I guess so there are no questions. So who is going to volunteer for the next short case? सब सो गए? I'll do it. डॉक्टर अनम, और मुझे किसी और की भी आवाज आई। हमारे साथ I'll do it. ये डॉक्टर तलहा और डॉक्टर अनम ने सिर्फ पैसे भरे हैं, बाकी सब ने जो है वो पैसे नहीं भरे शायद, तभी कोई। Dr. Majveen, I want to do it. ओ डॉक्टर अतिया, हाउ आर यू? फाइन। I'm good. How are you? आई एम गुड, आई एम गुड। डॉक्टर अतिया, सो बस डॉक्टर अतिया जो है नाउ शी इज बैक। ओके, आई जस्ट वांट कि यार सब पार्टिसिपेट करो। मैं जो है मैं किसी को नहीं हूँ, डॉक्टर अनम, डॉक्टर तला, नो तुम लोगों को इस तरह से मैं नहीं डिग्रेड करना चाह रही, आई एम जस्ट सेइंग कि सब पार्टिसिपेट करें। सो दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग कि जितने और लोग कर सकते हैं तो और ज्यादा अच्छा हो। सो डॉक्टर अतिया इज विद अस। सो डॉक्टर अतिया, दिस इज Okay. this is your command: examine the lower six cranials. For example, you have a patient in front of you and you have to examine. How would you see? First, I'll introduce myself. My name is Dr. Atya, and I'm going to examine your face lower six cranial nerve today. And if I have the permission, then I'll proceed. Then I'll sanitize my hand and ask for the exposure. If she's a female, I would, in our setup, they are having dupatta, so I would like to remove the veil or dupatta, whatever she has. And then I'll look at the
face of the patient and note any asymmetry or any asymmetry, symmetry or scars or vesicles on her face. And I'll ask her to look at my hand by placing my hand on the top of her forehead to see any raise of the eyebrows. And then I ask her to close her eyes completely shut tightly, and I would like to open it. Then I ask her to blow her face and keep it blown up, and but I would like to pop it. And then I'll ask, then what? A minute. Then yes, I will ask her to smile to look for any asymmetry, and then I will do the that's for the cranium of 7. Then I'll do the cranium of 8. I'll examine the external auditory meatus by the help of a white flashlight and look all around the ear bilaterally, and then do the whispering test bilaterally. If whispering test is negative, then I can skip the Weber and Rennie, and if it's positive, then I would proceed to the Weber. In Weber, I'll place the tuning fork 512 of frequency 512 over the vertex of the patient and ask where it is lateralizing, and then proceed to the Rennie test where air conduction is more than bone conduction. I'll place the tuning fork behind on the mastoid, and when the vibration is stopped, I'll ask the patient to tell me when the vibration is stopped, and then place the tuning fork in front of the ear, and then I'll move to the cranial of 9 and 10 and ask the patient to turn their face to the opposite side and cuff to check the cuff reflex. Then I ask the patient to open their mouth and say the ah and look for the position of the uvula. And if it's I see the if there is a uvula displacement, I would go for the gag reflex. And if it's normal, I can ask my examiner if I could skip it. And then from after that, we will proceed to the cranium of 11 and ask the patient to turn this head towards the opposite side, but place my hand contralaterally to look for the sternocleidomastoid muscle. I'll palpate it at the same time, and then on the other side, and then ask the patient to shrug the shoulder while I push it down. And then for the cranium of 12, I'll ask the patient to protrude the tongue outward and see if there is any atrophy or any fasciculation. And then put the patient then ask the patient to touch the inside of their cheek while I place my finger outside bilaterally. And then I'll thank the patient and cover them. Okay, Dr. Athiya, anything else? Then I would like to do the extension of my examination on the basis of my findings. Like if it's I have involvement of the cranial nerves, I would go for the cerebellar examination. I would do all the cerebellar exam like starting from the eye nystagmus, horizontal nystagmus, then speech discrimination, pass pointing, dydrodyskinesia, and tendon reflex, gait, and Romberg. And the meanwhile, quickly I will check for the fundoscopy. I would like to do the fundoscopy to look for papilledema and check the scalp for any shunt or EVD. Excellent. And planters. Okay. So that is it. Yes, ma'am. Okay. So Dr. Athiya, I would ask 2 questions. Yes. Yes. What would be those 2 depending on our findings? I'm depending upon my findings. Okay, so these are your findings. Okay, right side facial nerve palsy, decreased hearing in the right ear, positive cerebellus, and rest of the. Okay, facial palsy. Okay, I would like to know any. Since I haven't examined the whole body, so I would like to ask about NF2. It should be. Okay. What do you want to ask about it? Any history of a tumor, same hearing loss associated with tumor in the family to rule out NF2? No. And no? No. Sorry, ma'am, I cannot recall the questions. Okay. Okay, so these are your findings. So on the basis of these findings, what do you think? Where is the lesion? I'm in the right-sided CP angle. Okay. What could be the differentials? Ma'am, since there is a hearing and my patient was male or female? It was female. It's a female. So my what was the I would like to ask the order of the findings. Was the facial nerve appeared first or the hearing? Facial nerve. So my first differential would be meningioma, and then it would be a facial meningioma. Second would be the vestibular schwannoma. Then it can be epidermoid or these top 3. These are my top 3 differentials. Okay. So how would you investigate?
So I would like to order the MRI brain with contrast with IAC protocol, internal artery canal protocol. Why IAC protocol? Because my second differential is vestibular schwannoma, so if I would like to exclude it too. So if it is your second differential, then why you go for intra-aortic canal in the first investigation? Okay, sorry, ma'am. Okay. So these are your images. Please read them. Okay. Yes, ma'am. MRI brain. These are both images are MRI brain. Both are axial cuts. On the left side we have T1 weighted image. On the right we have T2 weighted image. On the left we have there is a single well circumscribed hypointense lesion in the right cerebellar angle, CP angle, which is the lesion is extending up to the anteriorly into the prepontine cistern area, and it is compressing the surrounding brain parenchyma, that is cerebellum and brainstem. While the fourth ventricles appear normal and it is not displaced, and in this cut I cannot comment on the temporal horn. On the T2 weighted image, the lesion appears cystic in appearance, and is it's surrounding the basilar artery, I think, and Okay. rest of the brain anatomy seems normal. Okay. Any other investigation you want to carry out or images you want to see? I would like to see the CT. Why? I want to see the bony anatomy of this region. Okay, so what are you suspecting on these on these two images? Since it's has a broad base attachment, it seems like a meningioma. Can you say it's a meningioma without seeing a contrast? No, ma'am, I would like to see the contrast image. Okay, so these are your further images. Please describe them. So this is a T1 weighted image with contrast, and the lesion is non-contrast enhancing. On the DUD, the other one is DWI, and it shows a restricted diffusion. So it's epidermoid, Okay, CP angle epidermoid, okay, most likely. okay. Why is it not the other, any other like arachnoid? The rest of the all CP angle tumors, they are not diffusion restricted. Okay, okay. So how will you manage this case? So first, I'll consult the patient regarding the disease, and then and tell them that they need the surgery. And if the patient agrees to the surgical treatment plan, I will admit the patient, order the baseline investigation, and all the and optimize the patient meanwhile along with medications, and prepare the patient for the surgery. After the GA fitness, a day before the surgery, I'll inform the OT staff regarding the availability of microscope and cranial nerve monitoring, SSC, lower cranial nerve monitors, and I'll prepare the patient for the surgery. Should I tell you the steps? Quickly, just in a minute. Okay, so I would like to approach this tumor by the retrosigmoid approach. And for that, after the intubation, the patient will be positioned in a park bench position. And then I'll give an NC, after cleaning and dripping, we will give it an application of all the cranial nerve monitors leads. I will give an NCN 0.5 centimeter medial to the mastoid, and it extend roughly 3 to 4 centimeter above and 1 centimeter below the mastoid process. And after the skin NCN, we will do the burr. We will come to the craniotomy stage. We will do the burr at the level of after localizing the asterion. There are three methods to localize asterion. The easiest one is from external artery meatus. We draw a line joining the external occipital protuberance that shows the transverse process, and sigmoid is from mastoid process to the line. So there I'll do the burr, and then I'll by the help of a drill, and then I'll by the help of Kingston Johnson, I'll enlarge my craniotomy, and then I open the dura in the C-shaped Calverini pattern with the base towards the sinuses, and then after with the help of soft malleable retractors, I retract the cerebellum and open the arachnoid over the
cisterna magna and drain the CSF to relax, drain the CSF initially from the CP cistern, and if required, then I'll open the cisterna magna. And then with the help of a malleable retractor, I'll retract the cerebellum upward slightly and medially, and identify the cranial nerves and reach the tumor. For the tumor dissection, I'll cauterize the tumor externally and start the internal debulking with the meanwhile monitoring the nerves. And once the maximum dissection is done, I'll try to roll off the tumor from the cranial nerves. And if it's easily removable, I'll remove that part. And if it's adherent, I'll read that part. And later on, then I'll put on the normal saline, lukewarm warm saline, to check out any bleed. And once the hemostasis is secure, we will close the dura in a watertight fashion. And before closing, I'll fill the cavity with this saline, and then close the skin in the reverse order. ओके एक्सीलेंट एक्सीलेंट डॉक्टर अतिया, यही सारी चीजें होती हैं एंड यू वर वेरी वेरी गुड थ्रू आउट दिस स्टेशन, ठीक है। बट जस्ट वन एडवाइस, इसके सारे सीक्वेंसेस देखने से पहले आप अपनी डायग्नोसिस नहीं बताओ, ठीक है। यस मैम। जब तक हाँ आप आगे की सीक्वेंसेस नहीं देखते हो, आप नहीं बोलोगे कुछ ऐसा कि ये क्या है। तो लिमिटेड रेडियोलॉजी देख के आप नहीं बताओ। अगर है फॉर एग्जाम्पल मेरे पास होती ये 2 तस्वीरें, तो मैं आपको कह देती कि नहीं है और नहीं है, तो आप इसी के बेसिस पे मुझे बता दो। तो फिर आप कहोगे कि ठीक है, दीज आर लिमिटेड इमेजेस, सो आई कैन पुट इन वाइडर डिफरेंशियल्स, और फिर वो आप 3 डिफरेंशियल्स बता दो, इवन एरेक्नोइड भी बता सकते हो, ठीक है। लेकिन डायरेक्टली ओके मैम। बोलना कि दिस इज अ मेनिंजियोमा, तो उस पे फिर जो है वो थोड़ा सा ये शेडी हो जाता है, ठीक है। यही चीजें हैं जो मैंने पूछी थी। समराइज योर फाइंडिंग्स, लाइकली डायग्नोसिस, और ये सारी चीजें मैंने पूछी थी, ठीक है। इन जो एग्जामिनेशन आपने की, इट वाज वेरी गुड, ठीक है डॉक्टर अतिया। ये सारी चीजें जो आपने बताई थी, दे ऑल आर चेक्ड इन दिस ऑर्डर। रिने और वेबर का मुझसे किसी ने पूछा था, तो ये जो है डॉक्टर अतिया, पहले आप रिने टेस्ट करते हो, ठीक है। रिने ओके में मैम। आपको पता चलता है कि एयर कंडक्शन इज बेटर देन बोन कंडक्शन, एंड देन यू गो फॉर द वेबर्स टेस्ट, ठीक है। तो ये आपको ये जो है आपका था कि पहले आपने वेबर कहा था, फिर रिने कहा था। अच्छा, दूसरा ये कि जब आप रेलिवेंट एग्जामिनेशन करते हो, तो यू टोल्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग, ठीक है। तो सेरिबेलर साइंस, फंडोस्कोपी, स्किन स्टिग्मेटा। स्किन स्टिग्मेटा का ये भी होता है कि आपके पास इतना टाइम नहीं बचा है, तो वो आप एक क्वेश्चन की फॉर्म में भी पूछ सकते हो, ठीक है, जैसे डॉक्टर अतिया ने पूछा मुझसे। दैट इज ऑल्सो फाइन। दूसरा ये कि शंट अगर हुआ है पेशेंट का, तो डॉक्टर अतिया ने ये भी बताया कि आप शंट भी जरूर चेक करते हो। सो डॉक्टर अतिया, वेरी गुड। रेलिवेंट एग्जामिनेशन में आपको ये 3-4 चीजें कभी नहीं भूलनी होती। फिर एपिडर्मोइड का ये चार्ट बना हुआ है, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी। पैथोजेनेसिस भी बुक में लिखी हुई है। सिर्फ मैं एक कॉन्सेप्ट देना चाहती हूँ, DWI और ADC का कभी कभी आपको आइडेंटिफाई करने में मुश्किल होती है। तो जस्ट याद रखने के लिए ये याद रखो कि DWI में आपको CSF ब्लैक नजर आता है, ADC इमेज में आपको CSF वाइट नजर आता है। ये थोड़ा सा बस याद रखने के लिए। ऐसी इमेज जिसमें आपको बोन और ये MRI वाली बाहर की चीजें नजर नहीं आए, सिर्फ आपको ब्रेन नजर आ रहा है, ठीक है, तो या तो वो DWI या ADC होता है, या ससेप्टिबिलिटी वेटेड इमेजेस या परफ्यूजन स्कैन्स में ऐसा होता है, ठीक है। तो इसमें जो है आपको DWI में CSF ब्लैक, ADC में CSF वाइट, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि इसमें जो रिस्ट्रिक्टेड डिफ्यूजन होती है, ठीक है, आप क्या बोलते हो, DWI पे रिस्ट्रिक्टेड डिफ्यूजन जो है वो वाइट नजर आती है, ब्राइट नजर आती है, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है। तो इफ एनीथिंग इज अपियरिंग वाइट ऑन DWI, तो उसको आप कहोगे रिस्ट्रिक्टेड डिफ्यूजन। द लीजन इज शोइंग रिस्ट्रिक्टेड डिफ्यूजन, ठीक है, एज इट इज अपियरिंग ब्राइट ऑन DWI, ठीक है। और इसी तरह से वो ADC पे ब्लैक नजर आएगा। तो एरेक्नोइड सिस्ट अगर होगी, तो उसमें DWI पे देयर विल बी नो रिस्ट्रिक्शन, ठीक है, तो इट विल अपियर डार्क। लेकिन अगर वही चीज एपिडर्मोइड होगी, तो इट विल अपियर ब्राइट ऑन DWI, ठीक है। पढ़ने के लिए जो है ये सारी आपकी रेफरेंसेस हैं ग्रीनबर्ग से, ठीक है। चैप्टर जो है ऑपरेटिव क्रिमिनल न्यूरोसर्जरी से, आप रिट्रोसिग्मॉइड अच्छा उसमें लिखा हुआ है। बाकी रंगाचारी में जो है वो CP एंगल ट्यूमर्स थोड़े अच्छे डिटेल में लिखे हुए हैं। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। इफ देयर इज एनी क्वेश्चन, मोस्ट वेलकम टू आस्क। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक्सक्यूज मी मैम, मैं ये पूछ रहा था कि अगर विस्परिंग टेस्ट पेशेंट का नॉर्मल है, वो मतलब ऑडिबल है, तो फिर भी वेबर या रेनी दोबारा करना पड़ता है उसमें कि नहीं? नहीं, यू कैन, देखो क्या हम अब स्किप कर मसला सकते हैं? मसला ये है कि अगर विस्पर टेस्ट सही होता है,
तो आप रिने और वेबर को स्किप कर सकते हो, लेकिन आप एग्जामिनर को जरूर बताओ। और शॉर्ट ओके केस में जब आपको ये कमांड दी जाती है तो मोस्टली पेशेंट को सीपी एंगल के मसले में हेयरिंग का मसला होता ही होता है। तो शॉर्ट केस में बेहतर है आप स्किप हम्म ना करो। ओके शॉर्ट केस में और आपको दूसरा इस सही और दूसरा इसमें हम रेलिवेंट एग्जामिनेशन क्या करेंगे, सॉरी क्वेश्चंस क्या करेंगे, 2 क्वेश्चंस इस पेशेंट में हम क्या पूछेंगे? अभी हमें पता चल गया कि पेशेंट का जो है ना सीपी एंगल में प्रॉब्लम है, मतलब सही। हेयरिंग और सेवन नर्व इन्वॉल्व है। तो इसमें हम क्या शंट की हिस्ट्री का पूछ लेंगे कि पहले आपका शंट तो नहीं हुआ या क्या? आप मतलब बिल्कुल, ये मैंने कहा कि आप जो है वो स्किन फाइंडिंग्स का पूछ सकते हो कि जिस्म में कहीं कोई निशान या फोड़े तो नहीं है। ठीक है। दूसरा ओके, मतलब सवाल आप, न्यूरोफाइब्रोमिटोसिस अगर हम सोच रहे हो। जी जी बिल्कुल। दूसरा उसमें जो है हम्म आप प्रीवियस हिस्ट्री कोई सर्जरी की जिसमें शंट है, बिल्कुल आप ये पूछ सकते हो। ठीक है। तो ये, या ओके फिर रेज्ड आईसीपी के साइन एंड सिम्टम्स जिसमें विजन या वॉमिटिंग वगैरह, ये आप पूछ सकते हो। तो ये 2-3 चीजें हैं जो आप पूछ सकते हो। ठीक है। ओके अच्छा, थैंक यू। शंट प्रेशर्स, हाँ यही चीजें हैं। ठीक है। तो 5 से कम इज लो प्रेशर, 6 to 10 मीडियम एंड 11 to 15 जो है वो हाई प्रेशर शंट होते हैं। इसी तरह सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर में ये आपके हैं। एनीथिंग एल्स? ओके, सो डॉक्टर बाबर, आर यू हियर? जी जी डॉक्टर। ओके डॉक्टर बाबर, सो काफी टाइम मैंने आपका ले लिया। सो यू हैव 20-25 minutes टू wrap up 2 short चल cases and a talks. जल्दी इसको वाइंड अप करते हैं। Okay, okay. Thank you everyone. Okay, who is going for the next talks station? This is the last one. जी सर, हाँ अगर आमिर अपर भाई। लिम्ब लोअर अगर अपर लिम्ब लोअर लिम्ब आ गया या अपर 6 cranial नर्व आ गया तो फिर इंशाल्लाह करूंगा। नहीं, it's not a short case, it's a talks station. ओके ओके सॉरी। अच्छा अच्छा। Okay, Dr. Amir, जी जी। can you identify this picture? Yes, in this image, the label A shows mammillary bodies and हाँ? ओ भाई नहीं। Um, crosstalk is actually not allowed, but Dr. Amir, you are sure this is endoscopic view of third ventricle? Okay, any volunteer who wants to do this station? This is a bit tough one. सर मैं करूँ सर? हाँ जी, Dr. Talha? जी सर। Oh, okay, Dr. Talha, go for it. अच्छा सर, ये जो डी है सर, ये प्लैनम सफिनाइड लग रहा है। ठीक है। बी सर सेलर फ्लोर है। सी सर क्लैवल इंडेंटेशन है। और ए सर ये ऑप्टिको कैरोटिड रिसर्च है सर, बाइलेटरल। ठीक ठीक है, एक्सीलेंट। अच्छा, मैं कुछ जगहों पे पॉइंट आउट कर रहा हूँ थोड़ा सा उसको स्पेसिफिक दिखाने के लिए। ये कौन सा एरिया है? सर ऑप्टिक कैरोटिड रिसर्च है ना, ऑप्टिक कैनाल जो होती अगर एक स्पेसिफिक मैं स्ट्रक्चर कहूँ उसको आइडेंटिफाई करें, रिसर्च को है। छोड़ते हैं। ये ऑप्टिक बल्ज नर्व। किस चीज़ का है? तो यहाँ पे ये बल्ज किस चीज़ का है? कैरोटिड आर्टरी। हाँ जी, कैरोटिड आर्टरी का। सेलार फ्लोर के जस्ट लेटरल पे जब आप देखते हैं तो दिस इज बल्ज जो है, कैरोटिड बल्ज है ये। यस सर, यस सर, यस। ठीक है। ऊपर की साइड पे ये जो बल्ज देख रहे हैं आप, दिस इज ऑप्टिक ये ऑप्टिक apparatus. नर्व, In ऑप्टिक between there is the optico-carotid recess. ठीक है सर, यस सर। ठीक है। ये सी पे आपने क्या आइडेंटिफाई किया? क्लैवल इंडेंटेशन। दिस इज क्लेविस इंडेंटेशन। एक्सीलेंट। व्हाट इज दिस स्ट्रक्चर बी? सही, सेला का फ्लोर है ना, सेला ये पूरा वो। बिल्कुल सेला है। ठीक है। एंटीरियर टू सेला आपको ये क्या स्ट्रक्चर मिलेगा? ट्यूबरकुलम सेला, ऊपर प्लैनम होगा। ट्यूबरकुलम सेला एंड दिस इज प्लेनम स्फिनोइडम। ठीक है। ठीक है, एक्सीलेंट। ओके, सो ये कौन से प्रोसीजर का व्यू है? सर ये एंडोस्कोपिक एंडोनेजल ट्रांसफिनाइडल अप्रोच ऑफ टू ट्रिएडिनोमा या सेला सुपरसेलुलर कोई भी हो सकती है। ओके, टेक अ सेकंड एंड अगेन रीनेम इट। सर एंडोस्कोपिक एंडोनेजल ट्रांसफिनाइडल।
हाँ जी, अब फिर से रीनेम करें इसको, एंडोस्कोपिक ट्रांसस्फिनोइडल और एंडोस्कोपिक एंडोनेजल ट्रांसफिनाइडल। ट्रांसस्फिनोइडल। Okay, excellent. What are the indications of this procedure? सर सैरल सुपर सैरल लियन पिट्यूटरी माइक्रोइनोमा सर। ठीक है, और सर इसके अलावा? टुबरकुम सैला की लियन हो सर, उसमें भी सर कर सकते हैं। ठीक है, और? एंड सर इसमें और है वो टुबरकुलम सैला हो सकता है, और पिट्यूटरी सैला सुपर सैलर एंड सर क्रेनोफिंजियोमा। ठीक है, क्रेनियोफार्yngioma में, यस। और? और सर इसमें हम जा सकते हैं उसमें, सर बाकी से तो नहीं पता है, बाकी तो नहीं आता ट्रॉमेटिक किसी कंडीशन में कर सकते हैं हम ये प्रोसीजर? सर। वो राइनोरिया सीएसएफ राइनोरिया में जो करते हैं उसमें हाँ जी, उसको क्या कहेंगे? सर सीएसएफ लीग रिपेयर सर। CSF फिस्टुला में करेंगे हम इसको, टूला में करेंगे सर, यस। for the repair. Okay, can you tell me the different prerequisites या प्रिपरेशन कैसे करवाते हैं हम पेशेंट की बिफोर गोइंग फॉर द ट्रांसस्फिनोइडल एंडोस्कोपिक अप्रोच? सर सबसे पहले हम सीटी फेस स्कैन करवाते हैं टू सी द नेमोटाइजेशन ऑफ सफिनाइज साइनस। ठीक है, ठीक है, उसके बाद सर वो एंडोस्कोपी का सर सारा हम अरेंज करते हैं ओटी। और सर पेशेंट की सर जो नोज है सर उसको प्रिपेयर करते हैं सर, उसको हाउ डू यू जाइनोसील प्रिपेयर द नोज ऑफ पेशेंट? सर जाइनोसील प्लस लिडोकेन स्प्रे लगाते हैं सर, ताकि पेशेंट की वो ब्लीडिंग ना हो। ठीक है, ठीक है, एक्सीलेंट। ओके, कैन यू टेल मी व्हाट आर द स्टेप्स, सर्जिकल स्टेप्स? यस सर। सर आफ्टर सर मेकिंग द पोजीशन सर पेशेंट को नेक स्लाइटली एक्सटेंड करूंगा सर। सर देन सर आई विल लुक फॉर द डीएनएस के, देखूंगा जहाँ पे सर नेजल कैविटी लार्ज की तरह है, जहाँ मेरी स्पेस ज़्यादा है सर, उसके थ्रू सर मैं एंडोस्कोपी सर इंसर्ट करूंगा। सबसे पहले सर जी मैं वो देखूंगा अपना इन्फीरियर टर्बुनेट को लोकलाइज करूंगा। देन सर उसको लोकलाइज करते करते मिडिल टर्बुनेट में जाऊंगा सर, उसकी मिडिल टर्बुनेक्टमी करूंगा सर। देन सर आई विल अब पुश जाके सर फिर मैं उधर जाऊंगा, क्या नाम है सर, एंटी सफिनाइड डेक्टमी करूंगा, वोमर बोन निकालूंगा सर। फिर और कॉन्ट्रालेटरल सफिनाइड बोन को सर एक्सपोज करूंगा सर, एंटी सफिनाइडेक्टमी करूंगा सर। उसके बाद सर मेरा वो सेला फ्लोर और ये सब मेरी लिमिटेशन सर ये होगी जब तक मेरी ये चीज़ें नज़र ना आ जाए सर, ऑप्टिक और कैरेटिव रिसेस दोनों बायलेटरल। उसके बाद सर मैं ये इधर जाके सर इनकी सर मैं सफिनाइडेक्टमी करके सर फिर डूरा को सर ओपन करूंगा क्रूशियल मैनर में। ठीक है। अच्छा, एक ये स्ट्रक्चर जो स्टार यहाँ पे बना हुआ है, दिस इज सेप्टम, दिस इज स्फिनोइडल सेप्टम। एकदम से इसको सर वो रिमूव करना होता है। ठीक है, इसको ये लोकेट हमारा करना जरूरी है। लोकेट करना होता है सर इसको, ये सब हमारा मिड पॉइंट होता है। ओके, कैन यू टेल मी द डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस ऑफ दिस प्रोसीजर? सर जो जो स्ट्रक्चर है सर उनमें डैमेज हो सकता है सर, ऑप्टिक नर्व डैमेज हो सकती है, कैल्शियम अपरेटस डैमेज हो सकता है सर, आईसीआई की सर डैमेज हो सकती है सर। ठीक है, एक्सीलेंट। सर और सीएसएफ लीक रिपेयर हो सकता है सर। हाउ यू आर गोइंग टू सीएसएफ प्रिवेंट द CSF लीकेज? सर उसमें हदाद फ्लैप सर मैं पहले सर उसको रेज कर सकता हूँ सर व्हाट इज ड्यूरिंग। अदात फ्लैप? सर वो ये होता है कि हम सेप्टम के सर सुपीरियर बॉर्डर में सर एक सर फ्लैप उठाते हैं और सर कोनका के इंफीरियर बॉर्डर पे निकालते हैं अप टू द बोनी एंड कार्टिलेज जंक्शन ऑफ द नोज सर, फिर उसको सर उठाते हैं सर फ्लैप को। ठीक है, एक्सीलेंट। और क्या मेजर्स लेंगे आप टू प्रिवेंट CSF और लीकेज? और और क्या सर ऑप्शन है आपके पास? आधार फिर सर उसकी सर फिर सर बोन ग्राफ सर फैट का रख सकता हूँ, मसल रख सकता हूँ सर ऊपर। गैस की टेक्निक होती है, सैंडविच टेक्निक होती है, दो टेक्निक होती है सर, उसके थ्रू सर मैं कर सकता हूँ। ठीक है, फेट क्राफ्ट रख सकते हैं। और क्या मटेरियल यूज कर सकते हैं आप? सर ये डूरा जेल सर यूज कर सकता हूँ। ड्यूरा जेल या फिब्रिन ग्लू यूज कर सकते हैं फिर इसमें। glue use कर। ठीक है, ओके। पोस्ट ऑप और क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है इसमें? सर इसमें सर मोस्ट कॉमन सर डीआई का सर ज्यादा चांस होता है सर, उसमें सर यूरिन ओके, आउटपुट सर देखना होता है। और सर पोस्ट ऑप सर ये हो सकता है पेशेंट की वीएन डिटेल ज्यादा हो सकती है सर, अगर सर कोई मतलब ब्लीड पड़ा है, गाजर में प्रेशर ज्यादा हुआ है, उस पर सर सीएसएफ लीक हो सकता है सर। TI कब लेबल करते हैं आप पेशेंट को? वही सर डीआई सर जब सर सर या तो सर 2 आवर्स में सर लगातार 250 to 300 ml यूरिन ज्यादा आ जाए, या 1 घंटे में 400 ml तक आ जाए, तो सर इसमें हम डीआई लेबल कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा मुझे बताएं कि ट्राइफेजिक रिस्पॉन्स क्या होता है? सर ट्राईफेज रिस्पॉन्स सर ये होता है कि सर पहले सर जब
पढ़ना पड़ेगा सर, भूला हुआ है सर, आप पता है लेकिन भूला हुआ है। एक में सच में ये होता है कि वो डीआई होता है, फिर वो नेक्रोसिस होती है, दोबारा ईडीएच निकलता है, फिर डीआई रुक जाता है, फिर दोबारा सर फेज 3 आता है सर, वो भूला हुआ है, पढ़ना पड़ेगा दोबारा। ठीक ठीक है, ओवरऑल एक्सीलेंट, यू आर गुड डॉक्टर तला। और आपने स्ट्रक्चर्स बिल्कुल सही आइडेंटिफाई किए। दिस वाज द एग्जामिनर्स शीट, नेम ऑफ द प्रोसीजर एंड डिफरेंट indications, complications of this procedure, prerequisites or preparation, how do you prepare the patient, what is triphasic response. So these are the structures. जैसे मैंने बताया कि इन सेंटर यू हैव टू आइडेंटिफाई द सेला फर्स्ट। एक दफा आपने सेला को आइडेंटिफाई कर दिया, इट्स वेरी इजियर। जो पीछे की तरफ आपको पिट नजर आएगा, दिस इज द क्लाइविस। एंटीरियरली आपको एक इंडेंटेशन नजर आएगी, दैट इज ट्यूबरकुलम सेला, विच इज सेपरेटिंग द सेला रीजन फ्रॉम द प्लेनम स्फिनोइडम। इसी की रूफ पे रन करती है आपकी ऑप्टिक apparatus, दिस इज ऑप्टिक प्रोट्रूबेंस। और सेला के लेटरल साइड पे आपको मिलेगी कैरोटिड प्रोट्रूबेंस। दिस स्टेशन एक्चुअली केम इन माय टॉक्स स्टेशन, और ये पिक्चर देखने के बाद आई वाज अ बिट वरीड। और अगेन यू स्टार्ट टू नीड टू स्टार्ट इट फ्रॉम द बेसिक्स। जो बेसिक स्ट्रक्चर्स आपको आइडेंटिफाई होते हैं, यूजुअली द कैरोटिड बल्ब, इट इज easier to identify, and the sella and the clavis at the back. This is how you catch up. दो तीन चीजें जो आप आइडेंटिफाई करते हैं, वहां से फिर आप इसको कैरी ऑन करना स्टार्ट करें। ओके, कमिंग टू द ट्राइफेजिक रेस्पॉन्स, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब भी सेलार का केस आपके पास आएगा, पिट्यूटरी क्रेनियोफेरेंजियोमा, तो ट्राइफेजिक रेस्पॉन्स की बात होगी, एंड यू शुड रिमेंबर इट ऑन द टिप्स। DI first of all short duration का होता है due to injury to the posterior pituitary, and then there is the release of the ADH, जो preformed ADH होता है वो release होता है, and the condition gets better, but after that long term again patient develops the DI, so that is very important. Coming to the short cases, Dr. Amir, you are Yes, still there? जी Okay, so you are going to do this short case. okay sir. Okay, let's try it. Okay, so this is a child, and you have to do the examination of the back of the child. अब आप मुझे वो पॉइंट्स बताते जाएंगे कि आप एग्जामिनेशन में क्या क्या करते हैं जब आपके पास ऐसा शॉर्ट केस आ जाए तो। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करूंगा, जो इस पेशेंट का अटेंडेंट होगी, लेट्स सपोज मदर है, उसके सामने, और फिर उससे कंसेंट लूंगा एग्जामिनेशन की। और उसके बाद जो है एग्जामिनेशन में पहले सबसे पहले इंस्पेक्शन करूंगा। इंस्पेक्शन में जो ओवरलाइंग स्किन है और जो सराउंडिंग स्किन है वो देखूंगा। उसके बाद पल्पेशन में मैं इसकी साइज मेजर करूंगा, लीजन की मोबिलिटी इसकी देखूंगा। और नेक्स्ट जो है इसका अस्कल्टेशन, उसको अस्कल्टेट करूंगा। एंड देन आई विल डू रेलिवेंट एग्जामिनेशन या आस्क फॉर रेलिवेंट एग्जामिनेशन। एंड ठीक है, रेलिवेंट रेलेवेंट एग्जामिनेशन में एग्जामिनेशन में इसका क्या देखना चाहेंगे आप? इंटायर स्पाइन देखूंगा, ऊपर थोरेसिक और सर्वाइकल, और प्लस जो है ना इसका हेड एग्जामिनेशन करूंगा टू सी फॉर टू रूल आउट हाइड्रोसेफलस, लाइक उसमें फॉन्टानेल हो गया, हेड सर्कम्फ्रेंस हो गया, और हाइड्रोकेफ है तो सनसेट आइज, और वो जो फीचर्स हैं वो उसमें वो करूंगा। और क्या क्या देखा आपने, रिपीट कीजिएगा। आपने स्पाइन देखी जी पेशेंट की, बाकी? जी, बाकी हेड एग्जामिनेशन करूंगा टू रूल आउट हाइड्रोसेफलस, ठीक है, लाइक उसमें और फॉन्टानेल्स देखूंगा, हेड सर्कम्फ्रेंस मेजर करूंगा, और सनसेट आइज देखूंगा जी। एंड डायलेटेड स्काल्प वेन्स अगर हैं वो देखेंगे, और सुचर्स देखेंगे अगर डायस्टेसिस है ड्यू टू हाइड्रोसेफलस। और इसके बाद जो है टू रेलिवेंट क्वेश्चंस। रेलेवेंट क्वेश्चंस क्या होंगे आपके? सर इसमें कोई रेज्ड आईसीपी के हम पूछ सकते हैं, लेट्स सपोज अगर उसको वो है
लाइक व्हाट, मदर से क्या पूछेंगे आप? वोमिटिंग वोमिटिंग तो नहीं है बच्चे को, नंबर 1। ठीक है। और दूसरा पिट्स का हम पूछ सकते हैं इसमें? इतना रेलेवेंट नहीं है यहाँ पे ये। व्हाट अदर क्वेश्चन यू वांट टू आस्क जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस कंडीशन से रिलेटेड? यस, ये नीचे एक भाई कह रहे हैं स्फिंक्टर्स का हम पूछ लेंगे, यूरिनरी स्फिंक्टर्स का ट्रैक्ट कैसे इनकॉन्टिनेंस पूछेंगे आप मदर से? के। वो हाँ, टेम्पर इसका गीला होता है कि नहीं? आप कॉन्वर्जेशन पढ़ रहे हैं? जी नहीं नहीं। अच्छा, ओके। सो मुझे ये बताएं कि रेलेवेंट एग्जामिनेशन में एक तो आपने हेड बच्चे का देखा, और क्या देखना चाहेंगे आप? जी, व्हाट आर अदर रेल में एसोसिएटेड कंडीशन विद दिस पर्टिकुलर कंडीशन? हाँ, एसीएम होता है सर, उसके लिए फिर हम क्या देखेंगे? क्या? एसीएम, हाँ, आर्नोल्ड क्यारी मार्फॉर्मेशन टाइप 2 एसीएम जी। ठीक है, उसमें क्या आपको बच्चे में मिलेगी फाइंडिंग? उसमें सॉरी सर, स्ट्राइडर मिलेगा आपको। स्ट्राइडर, यस एग्जैक्टली। स्ट्राइडर, ठीक है। अच्छा, और इसमें बच्चों में क्या एसोसिएशंस होती हैं? बच्चे में क्लब फुट हो सकता है इसमें। ठीक है, तो आपने बच्चे के फीट भी देखने हैं, और उसके अलावा? जी, और नहीं पता सर। आप फेस पे देखेंगे, क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट को रूल आउट करेंगे, अदर कार्डियक कंडीशंस को रूल आउट करेंगे आप बच्चे में। सही। ठीक है, देयर आर मल्टीपल एसोसिएशंस विद इट। ओके, सो व्हाट इज योर डायग्नोसिस? माय डायग्नोसिस इज माइलोमेनिंगोसी, नंबर 1। ओके, हाउ यू विल इन्वेस्टिगेट दिस पेशेंट? जी, वी विल डू अल्ट्रासाउंड ऑफ द swelling ठीक है। and also do ultrasound skull to rule out hydrocephalus. ठीक है, और क्या स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन इसकी? Specifics पता नहीं। MRI ऑफ स्पाइन? यस सर, एमआरआई करते हैं सर बच्चों में। बच्चे तो ये में हमारा बिल्कुल एमसीक्यूज कर। भी आया था सर कि आप बच्चे में कोई था इस तरह स्पाइना बाइफिडा का या कुछ इस तरह था न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स के लिए, आप उसका एमआरआई करेंगे या अल्ट्रासाउंड करेंगे? आई थिंक हमने तो अल्ट्रासाउंड वाला ऑप्शन ठीक किया था, लेकिन आप आई डोंट नो कि इसमें। MRI ऑफ द स्पाइन करना इज वेरी इसेंशियल ना, दैट इज फॉर द स्पेसिफिक फॉर द डायग्नोसिस के लिए। सही। ठीक है, MRI ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी MRI क्या कमांड देंगे, कहाँ की MRI करवानी है? एमआरआई होल करेंगे, स्पाइनल एक्सिस हम करेंगे। ओके, होल क्रेनियो स्पाइनल एक्सिस क्यों कर रहे हैं? कौन सी सर कंडीशन को उसका आप रूल आउट करना चाह रहे हैं? सर उसमें हम ACM2 को भी वो साथ में रूल आउट कर रहे हैं, लाइक उसमें अगर टेक्टल पीकिंग और वो जो फीचर्स होंगे अगर कैरी मेलफॉर्मेशन को ट्रांस। रूल आउट करना चाह रहे हैं, इसलिए हम CVJ जी की जी MRI करा रहे जी, हैं। बिल्कुल। ठीक है। ठीक है, ये आपकी फाइंडिंग्स है। There is a swelling at the lower back, 8 centimeter in size. It is soft in consistency. There is skin discoloration with watery discharge. Trans illumination की थी आपने? नो सर। नहीं, आपने मिस की थी। Why trans illumination is important? सर, इन ऑर्डर टू डिफरेंशिएट बिटवीन आइदर माइलोसील और माइलोमेनिंगोसील ठीक है। और सम अदर सॉलिड लीजन। यहाँ पे सॉलिड और क्या हो सकते हैं सर, सॉलिड कंसिस्टेंसी वाला? लाइपोमा तो नहीं हो सकता आई थिंक मतलब इसमें। अगर ट्रांस इल्यूमिनेशन पॉजिटिव होगी तो देयर इज जस्ट ओनली CSF। सी इफ एस ट्रांस एफ इल्यूमिनेशन आपको पैची मिलेगी तो इट इज माइलोमेनिंगोसील, मतलब देयर इज CSF बट अलोंग विद इट देयर इज सम न्यूरल टिश्यू एज वेल। और लाइपोमेनिंगोसील में आपको देयर विल बी नो ट्रांस इल्यूमिनेशन ओह पॉजिटिव। यस, लाइपोमेनिंगोसील जी। ठीक है। अच्छा, नाउ चाइल्ड हैज फ्लिकरिंग मूवमेंट ऑफ द लोअर लिम्स। लोअर लिम्स का पावर देखना क्यों जरूरी है ऐसे पेशेंट्स में? सर एक तो फिर पेशेंट जो अटेंडेंट्स होते हैं उनकी काउंसलिंग करनी होती है,
लेट्स सपोज ठीक है। अगर प्री ऑप पेशेंट की न्यूरोलॉजी लॉस है तो उसको हम पहले से बता देंगे कि भाई इसकी जो है ना प्री ऑप लॉस है, तो आगे भी जो है ना कोई चांस नहीं है कि इसकी न्यूरोलॉजी वापस आए। अदरवाइज वो पेशेंट फिर डॉक्टर को ब्लेम कर सकते हैं कि इसकी पहले तो ठीक थी टांगे, सर्जरी के बाद जो है ना अब ये बिल्कुल पाँव नहीं हिला रहा। एक तो व्हाट इफ ये की और न्यूरोलॉजी इज बेटर, बच्चा लीगल। मूव कर रहा है पैर, जी। फिर आप क्या काउंसिल करेंगे मदर को? फिर फिर भी हम काउंसल करेंगे कि सर्जरी के बाद जो है ना इसकी न्यूरोलॉजी लॉस हो सकती है और बच्चा यूरिनरी फीकल इनकंटिनेंस भी हो सकती है इसको आफ्टर सर्जरी। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट इज fontanelle is not bulge in this child. Okay, let's come to the investigation. Can you interpret Yes. these radiological pictures? This is MRI dorsolumbar spine. These are yes, on left side it is T1 weighted image, while it is sagittal view. On left side T1 weighted image, and on right side it is T2 weighted image. What do you see in Showing these cuts? it shows hypodense lesion in sacral area, hypodense cystic lesion in sacral area, which is hypointense on T1 and hyperintense on T2, same like CSF intensity. ठीक है। What else you are going to describe? Our alignment, sir, alignment is normal. नहीं, उससे ज्यादा important कॉर्ड पे कमेंट करेंगे। Cord, yes, yes, and there is a low-lying cord ठीक है, this is the cord, with low lying, teething of the cord. और Yes, teeth ring, plus this is the neural structure that is going inside into the inside swelling. into the swelling. Yes, So you start describing it from there is a defect in the lower back. yes. In the lower back, there is a bony defect Bony in which defect. there is a swelling, cystic swelling, which has the consistency same as that of the CSF. Plus, there is CSF. neural tissue engulfed into the swelling, and the cord is low lying, showing the teeth ring of the cord. Okay, so how you will manage this patient? For management, we will admit the patient and counsel the attendants. Right. And after doing baseline investigations, we will take anesthesia fitness, and after taking consent, we will shift the patient to OT, preparing for surgery, and then shift to OT. And we will, after anesthesia, we will keep the patient in prone position. We will give skin incision around the linear skin incision around the swelling. Skin incision कहाँ पे देंगे? Sir, around the swelling देंगे. ठीक है। Yes, after incision, after superficial dissection, we will identify the dura, and after that we will do dissection of the dura. ड्यूरा से पहले क्या स्ट्रक्चर आएगा जो आपने आइडेंटिफाई करना है और उसको सेपरेट करवाना है? सर स्किन आएगा और सबक्यूटेनियस टिश्यू आएगा, फैट। और इसमें सेंटर में क्या स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं? सेंटर में सर ये प्लेकॉर्ड है। जी, प्लेकॉर्ड है। जी। तो इनिशियली आपने प्लेकॉर्ड को जो है वो सेपरेट करवाना है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सबक्यूटेनियस टिश्यू। ओह यस। लेकिन सर ठीक इसका है। प्लेकॉर्ड अब सेंटर में पड़ा है, तो हम नॉर्मल स्किन से शुरू करेंगे ना, पेरिफेरी से। यस एग्जैक्टली, हम नॉर्मल स्किन से छुड़वाना स्टार्ट करेंगे इसको। जी जी। ठीक है, देन वी गेट इनटू द सेंटर जहाँ पे ये हम न्यूरल प्लेकॉर्ड जो है उसको हम सेपरेट करेंगे बाकी स्ट्रक्चर से। यस। ठीक है, यू गेटिंग आफ्टर इट? दैट, यस सर। ठीक है, And after नेक्स्ट क्या that, स्टेप होगा? we will remove the placard. We can transect the placard, and we will release the teething element. And after securing hemostasis, we will close the dura. क्या And रिलीज rest of करवाएंगे हम?
सर टीथरिंग एलिमेंट जो है कॉर्ड कॉर्ड रिलीज करवाएं। ठीक है, आपने जो डिफेक्ट है वो आइडेंटिफाई करना है। जी सर। पहले आपने जो प्ले कॉर्ड है उसको फ्री करवाया रेस्ट ऑफ द टिश्यू से, देन यू हैव टू जी आइडेंटिफाई द डिफेक्ट। ओके यस। ठीक है, डिफेक्ट में आपने जो न्यूरल टिश्यू है उसको रिलीज करना है, उसकी जो टीथ हाँ रिंग है उसको फ्री करना है। जी सर। देन व्हाट वुड बी द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर दैट? Next step after that will be securing of the hemostasis, and once hemostasis is secured, after washing we will close the dura. ठीक है, Yes. And after dural closure we will close the wound in reverse order. उसके बाद That कौन is सी लेयर the से क्लोज करेंगे हम उनको? उसके बाद हम फेशिया क्लोज कर लेंगे और कौन उसके सी बाद फेशिया? सुपर इसमें सैक्रल सैक्रल फेशिया होता है आई थिंक। लंबोसेक्रल फेशिया। लंबोसैक्रल फेशिया यस। we'll use the lumbosacral fascia to repair it. यस। ठीक है, एंड देन इसको क्लोज कर देंगे हम उसमें। पोस्ट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस बताइएगा इसकी। Host of complication ectocyst leak, hydrocephalus, and wound dehiscence, wound infection, and on long term दूसरा वो भी न्यूरोलॉजी लास्ट न्यूरो डेफिसिट urinary fecal retention. Okay. What is the most deadly complication? You have operated the patient and patient has expired on the same day. What is the most deadly complication जो इसमें हो सकती है? सर इसमें वो टॉन्सिलर herniation और brainstem क्यारी herniation एसोसिएटेड हो सकती है जिसमें क्या अच्छा जिसकी वजह associated. से। Okay, so now I guess it's 6, exactly 6, or it's iftar time. So Yes. Dr. Amir, you were really good. Comments थोड़ी Thank मैं you, देता sir. चलूं, but you need to practice more. Yes, sir, बिल्कुल। आप अपेयर हो रहे हैं इस दफा क्लिनिकल्स में? जी सर, हमें तो असल में होना पड़ रहा है ना, हाँ, अब मजबूरी क्योंकि है, बट नाउ यू नीड टू मजबूरी है। प्रिपेयर। अल्लाह खैर करे, दौड़ बहुत लगी है लेकिन हुआ कुछ नहीं है ना। बस अल्लाह खैर करेगा, बट जैसे मैंने कहा था ना, बाज़ औक़ात हालात हम चेंज नहीं कर सकते, हमें खुद को थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो जी वार्ड बिल्कुल। में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम गुजारें। दिस इज़ अ वेरी कॉमन स्टेशन, हाइड्रो और एमएमसी। दीज आर द जी स्टेशन जिस पे, जैसे डॉक्टर मेजबी ने कहा, इन स्टेशन पे माफ़ी नहीं है, और जो जी बिल्कुल। चीज़ें मोस्ट कॉमन है वो आपने पिक करनी है। ऑल ऑल शुड बी ऑन योर फिंगर टिप्स, ठीक है, फ्रॉम द अच्छा स्टार्टिंग टिल द एंड, टिल द जी कॉम्प्लिकेशंस। सर इस केस में लेट्स सपोज अगर स्किन क्लोज नहीं हो रही या हमारे पास ड्यूरा शॉर्ट हो, ड्यूरा तो अक्सर हो जाता है क्लोज, लेकिन अगर ये ड्यूरा स्किन शॉर्ट क्लोज होगी नहीं तो है। क्या करेंगे? सर ये तो मेरा क्वेश्चन था। हाँ, ड्यूरा शॉर्ट होगी तो ड्यूरल जो आप है फेशिया ले सकते हैं। सर इसमें हम इस एज में हम फेशिया कहाँ से सर लेंगे? आर्टिफिशियल ड्यूरा ले सकते हैं, जो आपको थोड़े को लंबर फेशिया मिलती है, उसका छोटा सा पीस निकाल सकते हैं, उससे आप रिपेयर कर सकते हैं इसको। ओके, और स्किन क्लोजर के लिए हम प्लास्टिक सर्जरी को हम कह सकते हैं कि इन्वॉल्व करेंगे? जहाँ पे स्किन क्लोजर अगर होता है तो आपको प्लास्टिक सर्जरी को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। डिफरेंट काइंड ऑफ ओके फ्लैप्स होते हैं इसमें, पेडिकल फ्लैप लेते हैं इसमें, इफ आई रिकॉल इट करेक्टली, बट इट्स बेटर आप कह सकते हैं कि हम प्लास्टिक सर्जरी को इन्वॉल्व करेंगे। ओके ठीक है, और कोई क्वेश्चन? यस। डॉक्टर मेजबी, यू आर हियर? Yes, I'm here. अब एक शॉर्ट केस रहता है, एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग वन एज वेल, या उसको बट अब फिर इफ्तार का टाइम हो गया, सो व्हाट टू डू? कल एडजस्ट कर लें, चलें, ठीक है। बिकॉज वो इम्पोर्टेंट है और मैं चाह रही हूँ कि वो जो है वो इस तरह जल्दी से स्किप ना हो। हाँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वन, आई गेस 20-25 मिनट्स उस पे लगेंगे, यस, तो सो इंशाल्लाह ताला कल फिर 3 बजे जो है वो करेंगे, तो फिर थोड़ा सा टाइम जल्दी से करके उसमें कवर कर लेंगे। ओके। अच्छा गाइस, देयर इज अनाउंसमेंट, कल हमारे लॉन्ग केसेस हैं 2, और हमारे पास जो गेस्ट एग्जामिनर होंगे सर लाल रहमान इज कमिंग टुमारो, सो वी आर रियली एक्साइटेड, एंड आई होप के जो कैंडिडेट्स हैं उनमें भी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होंगे हु वांट टू फेस सर, We need तो two हाउ वी आर गोइंग candidates. टू सिलेक्ट? We need two candidates. They can volunteer.
ठीक है, ओके। Any सो इन द ग्रुप, जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें जो भी वॉलंटियर्स हैं हु वांट टू डू द लॉन्ग केस टुमारो, दे कैन मैसेज, एंड हम उसमें से रैंडमली दो जो हैं कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करेंगे। सर लाल रहमान इज कमिंग, ही इज अ वेरी गुड एग्जामिनर और सीपीएसपी में, सो it's a very good chance for you people to do the practice. So see you guys tomorrow. okay. डॉक्टर मेजबिन, आप कुछ कह रहे थे? नहीं, बस इंशाल्लाह यही है कि जो जो वॉलंटियर करना चाहे दे कैन सेंड इन द ग्रुप. वी आल्सो हैव 2 long cases on Sunday, and we can adjust 4 candidates uh, in this module for long cases. So you can drop in your messages in the group, and inshallah ताला we'll see you tomorrow. और एक जो शॉर्ट केस रहता है वो भी इंशाल्लाह कल कवर कर लेंगे. So 3 PM sharp इंशाल्लाह. Okay guys, bye. Allah Okay, Hafiz. okay. Allah Hafiz.